want to first of all make you aware that what actually concrete is. Now you have already, you know that it's made up of aggregates, coarse aggregates, fine aggregates, and cement. And you also know that we add water. So this mixture of coarse aggregate, fine aggregates, and cement, water helps in the hydration of cement. Once the water helps in the hydration of cement, we have hydrated products. They are all CSH gel formations happen. Now these are crystalline. This is the crystalline material that is formed within the concrete, and we call this as, there is a cement paste which is predominant in the concrete, that along with aggregates, both coarse and fine aggregates, makes up together the concrete. But there are also some spaces left in between. If this is a concrete mixture, these are aggregates, then you have fine aggregates, then you will have portions where there will be cement paste, and there will be certain spaces or voids in the concrete, and you will always have certain spaces left behind within the concrete. Now it's very important to know gel space ratio. Gel is the cement paste, space is the void. This will always give you gel space ratio. Greater the gel space ratio, better is the strength of concrete. I am not going deep into the chemistry of this. I am just giving you a brief idea about what concrete is made up of at both macroscopic as well as microscopic level. At macroscopic level, you know it's made up of these three ingredients. But we also add further to that coarse aggregate plus fine aggregate plus cement. We also add admixtures. We also add certain admixtures into the concrete. Now these admixtures help us in many things. They may be strengthening. They may strengthen the concrete. For example, if you are adding silica fume, fly ash, steel fibers, and any other pozzolanic material, they all strengthen the concrete. The other ones are, they are hardening. So either you require hardening to happen quickly in concrete, because there are two processes. One is setting, other is hardening. Setting happens within the first 10 hours, and hardening keeps on happening after the material lasts actually. But till 28 days, the concrete has completely hardened enough. So you may need early hardening at times. So you add early hardening chemicals which will help you to achieve hardening initially. So this is one group. Then early setting chemicals you add as admixture to the concrete. What does it do? It sets your concrete quite early, जल्दी set हो जाता है. Why do you require it? For example, आप winter में, I'm moving fast through this lecture. For example, winter में आप casting कर रहे हो. What happens? You cast during the day, and at night it becomes less than 0 degree Celsius. So when it becomes less than 0 degree Celsius, जो उसमें पानी है, it will freeze. And when that water freezes, so that leads to void actually. And that water is not available to the cement for hydration. तो वो water freeze हो गया, वहाँ पर void रह गया. So there is a honeycombing action. The hydration is not complete. The strength is not achieved.
So you require quick setting such that जो ही आपने पानी डाला अभी वो पानी की फॉर्म में है, it's setting, and once it's setting you do, अगर रात को टेम्परेचर माइनस भी चला जाए, so still then it will be set already. So minus temperature actually has a problem in the setting of the concrete. So it may be used in the cross section one, and where you actually require to do the concreting within the water. जब आप पानी में कंक्रीटिंग कर रहे हो, आप वेल फाउंडेशन है, यहाँ का कहीं पर पानी है, पानी रेगुलरली आ रहा है वहाँ पर साइड पे, फाउंडेशन आप कास्ट कर रहे हो, नीचे वाटर टेबल हाई है, तो आपको क्विक सेटिंग चाहिए. सो यू रिक्वायर क्विक सेटिंग, केमिकल्स देयर एड्स एडमिक्सचर्स इनटू द, सो देयर आर वेरियस अवेलेबल, आई विल नॉट नेम देम. देन यू हैव aluminous cement. Aluminous cement, you have high, both aluminous as well as high alumina cement. Both of these types of cements or the concrete have high content of alumina. Now, why is that required? High content of alumina within, yes, it's giving you higher initial setting, and it's also giving you a higher hardening, and it's very good in the thermal, it has good thermal properties as well, high alumina cement. So that's why we may add aluminous compounds to this concrete so that we achieve high aluminous cement. Then there are pozzolanic cements, concretes. Pozzolanic concrete is itself formed due to what? When you add pozzolanic cement, then you are adding PPC rather than OPC. You are adding PPC rather than OPC. This is an ordinary Portland cement which is not achieved from cement जो खुद ordinary है, मतलब उसमें pozzolanic content बहुत कम है. Pozzolanic cement में pozzolanic content is more because it's formed from the rocks which have more pozzolanic material. Then you also have concrete where you require super plasticizer to be added. Now I told you this before that super plasticizer is required for decreasing the water content. And decreasing water content means decreasing W/C ratio, water to cement ratio. And what does that mean? जब आप water cement ratio कम कर रहे हो, it's actually क्या हो रहा है? Strengthen हो रहा है. The cement is getting strengthened. Again, there are various super plasticizers that are available, and so on. You can keep on adding different types of admixtures are available, which there are retrofitting में अलग types of admixtures available हैं, which aid in retrofitting. There are admixtures which even aid in waterproofing. जो आप waterproofing achieve करना चाहते हो in the concrete, such that it becomes waterproof, water repellent itself. So there are admixtures related to that as well. So there is a huge list which you can, but these are the common ones. So next, what do we focus on? What I told you this about concrete, that we do not only focus on its strength, we also focus on its durability. Now, durability you must have studied. Due to aging, what happens in concrete? One, there is creep happening, which is instantaneous or it's long term, and shrinkage that's happening in concrete. So those चीजें concrete में predominant है. One is creep and the other is shrinkage. Now creep can be primary creep or it can be secondary creep. What is creep? Creep is with time. It's actually a fatigue happening.
व्हाट इज फैटिग? जब आप किसी चीज पे कॉन्स्टेंटली कुछ लोड रखते हो तो वो उसी लोड के अंदर धीरे धीरे दब जाता है. देयर इज अ क्रीप स्ट्रेन दैट्स हैपनिंग. लोड चेंज नहीं हुआ, लोड वाज कांस्टेंट, बट स्टिल वो दब जाता है. इट्स एक्चुअली लाइक मैं 20 किलो का लोड ले सकता हूँ, लेकिन मैं कितने टाइम तक ले सकता हूँ? आधे घंटे तक. चलो, मैं क्या 1 घंटे तक ले सकता हूँ? नहीं, मैं फिर मेरी टांगें बैठ जाएगी. सो इट्स क्रीप इज समथिंग लाइक दैट. इट्स अ फैटिग हैपनिंग within the structure itself due to constant load. So that's creep. Then there are two forms of creep, primary and secondary creep, which is actually based on time, which is अभी जब आपने कास्टिंग की उस टाइम पे क्रीप कितना डेवलप हुआ, क्योंकि कास्टिंग के दौरान भी क्रीप हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव पुट अप द फॉर्म वर्क एंड उसमें आपने यू आर पोरिंग द कंक्रीट ओवर इट. तो कंक्रीट खुद अपने लोड से ही पहले ड्यूरिंग द कास्टिंग एंड द फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ सेटिंग में वो उसमें फैटीग आ जाता है अपने लोड से, अंटिल यू पुल आउट द फॉर्म वर्क. तो उसके बाद वो सेट है, हार्डन्ड है, बट स्टिल इट्स अंडर सडन कांस्टेंट लोड. तो उसके बाद सेकेंडरी फैटीग स्टार्ट हो जाता है. सो वन इज बिफोर यू आर पुलिंग आउट द फॉर्म वर्क ऑफ द कंक्रीट, उससे पहले, जिसको हम प्राइमरी क्रीप कहते हैं. एंड द अदर वन इज once it has hardened and set, so it's secondary there, and it continues into years. सालों ये चलता रहता है. Then other is shrinkage. Now what is the difference between the two, shrinkage and creep? Shrinkage is, it's actually happening due to multiple things. One, it can be temperature related. Shrinkage is happening due to temperature. जितना आप कम हो रहा है temperature during the winters, then it's shrinking. It can be temperature related shrinkage. It can be construction related shrinkage. आपने कहीं पर कुछ structure you have poured the slab today, then क्या हो रहा है उसके बाद? It's आप जो ही उसमें form work निकाल रहे हो and then it is hardening, उसमें hydration हो रही है, it's shrinking during the process, क्योंकि उसमें heat of hydration develop हो जाती है. तो heat of hydration पहले वो फूल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन खत्म हो गई, हाइड्रेशन सीमेंट की हो गई, तो उसके बाद वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. सो द श्रिंकेज इज हैपनिंग ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स विद इन द कंक्रीट. सो दैट्स अबाउट. सो एजिंग इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी इन द कंक्रीट. एजिंग इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी. रिमेंबर दिस, हर कोई चीज एज हो जाती है. सो द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग इज लिमिटेड. तो उसका एक ना फाइनल टाइम आ जाता है हर चीज़ का, जहाँ पर वो चीज़ डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज हो जाती है. सो द पीरियड बिफोर दैट इन विच इट इज एक्चुअली सर्विसेबल. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. The period in which it is, I told you this before, but now I'll explain this much more elaborated. The period in which it is serviceable. The period in which it is serviceable means ये adequate strength इसमें, there is adequate strength available in concrete to resist load. एक टाइम था जब आपने इसको कास्ट किया, फिर ये 28 दिन में सेट हो गया, हार्डन हो गया. उस टाइम पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी. अब कहते हो कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है कंक्रीट की. नहीं, वो पहले 28 दिन में बढ़ती जा रही है, उसके बाद एक रिवर्स इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है. हर चीज़ का वही है, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन की ओर चला जाता है. सो एवरीथिंग इज एक्चुअली एजिंग आफ्टर दैट. साथ में हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे साथ में क्रीप एंड श्रिंकेज भी हो रहा है, जो कि इसको डिकम्पोजिशन की ओर ले रहा है. तो it is serviceable out until its strength is enough to take the loads. So there is a service life associated with this service life. The life for which it is offering it is services. जिस टाइम तक ये बिल्डिंग फंक्शनल है, उसके बाद इट्स नो लॉन्गर फंक्शनल. जिस टाइम तक ये ब्रिज सर्विसेबल है, उसके बाद वो ब्रिज
कि लकड़ी टूट रही है कहीं पर तो उसको रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। तो यू मस्ट हैव सीन ब्रिज को हर 10-12 साल में दे आर एक्चुअली ब्रिज को सील कर देते हैं दोनों तरफ से, देन दे आर एक्चुअली अगेन उसको फिर से रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर एक्चुअली रेट्रोफिटिंग स्ट्रेंथनिंग द ब्रिज बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं इट्स एक्चुअली ऑलवेज अंडर मॉनिटरिंग। उसमें मॉनिटर हो रहा होता है कि इसमें कहीं पर फॉल्ट लाइन तो नहीं डेवलप हो रही है जहाँ पर कि कल को क्रैक हो सकता है, देयर कुड बी अ ब्रिटल फेलियर एंड failure of the bridge structure. So the service life is very important, which comes from this term serviceable. जब तक ये serviceable है. Now, what do you say 50 years? I discussed this with you. Now, let me go into detail. 20 years, 25 years. I told you this in one of the lectures. The service life of a structure, for example, dam should be more than 50 years because you are constructing it at a higher initial cost. तो उसमें maintenance cost भी बहुत ज़्यादा है. Then you have buildings जिसमें higher initial cost कम ही है, maintenance cost भी कम ही है. So the service life can be decreased. You can have 25 to 30 years somewhere near there, depending on the importance of the structure. But you can always keep on increasing the service life by doing regular maintenance and repair of the structure. तो आप जितना जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते जाओगे स्ट्रक्चर में उतनी उसकी सर्विस लाइफ बढ़ती जाएगी विद टाइम. बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन इट इज नो लॉन्गर सर्विसेबल. You can increase, you can keep on increasing its service life, but there is still a limit at which it will then eventually be you have to pull down that structure and build a new one. So concrete is the material within reinforced concrete where you have to take into account उसकी सर्विस लाइफ. स्टील में करोजन हो रहा है. स्टील इज करोडिंग, उसमें करोजन हो रहा है. So when you have corrosion happening in the steel, you are actually restricted in the service life. For example, I am doing certain tests with the steel right now. We are planning to do certain tests. What we are doing, we are actually 50 साल का corrosion, 30 साल का corrosion, 20 साल का corrosion, and it's a set practice. उसको हम लैब में चेक कर रहे हैं कि वो हम रैपिड corrosion करके स्टील में वही 10 साल, 20 साल, 30 साल का corrosion we are checking in the lab कि होता क्या है in the steel and what is happening with the various things like bond and other things once it's corroding. So this was about the service life. Now I will quickly move into the design philosophy. डिज़ाइन फिलॉसफी, हम फिलॉसफी किसे कहते हैं? दिस इज द बेस ऑफ द इंजीनियरिंग. द डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी, नॉट ऑन मैथमेटिक्स. बट यू विल ऑलवेज सी कि उसमें मैथमेटिक्स ही है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फिलॉसफी. व्हाई? फिलॉसफी किसे कहते हैं? एनीबॉडी? फिलॉसफी किसे कहते हैं? हाँ, फलसफा. द उर्दू वर्ड फॉर डैट इज फलसफा. लेकिन है क्या फलसफा? क्या किसे कहते हैं? यानी फलसफा किसे कहते हैं? एक सोच. फलसफा एक सोच को कहते हैं, है ना? आप जब आप उससे ज़मीन की लेवल पे आते हो, फिर ज़मीन से आप छोटी से छोटी लेवल पे आते हो, तो छोटी से छोटी लेवल क्या है? आपका क्यूब है इन द सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट. एक क्यूब है, एक स्पेसिमेन है, आपने उसको लैब में टेस्ट किया.
किसके लिए टेस्ट किया? कंप्रेशन में टेस्ट किया। क्या इसमें कोई और फिनोमेना नहीं चल रहा है एट द सेम टाइम? यू आर टेस्टिंग इट फॉर कंप्रेशन, बट उसमें फ्लेक्सुरल प्रॉपर्टीज भी है, शेयर प्रॉपर्टीज भी है, टेंसाइल प्रॉपर्टीज भी है उस कंक्रीट के क्यूब में, बट यू आर ओनली चेकिंग इट फॉर स्मॉल वन पैरामीटर। एक पैरामीटर के लिए आप इसको चेक कर रहे हो, दैट्स फॉर कंप्रेशन, एक क्यूब को। जब आप इसी क्यूब से फिर वापस एक स्ट्रक्चर को बनाने बैठ जाते हो, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा, इस छोटे से क्यूब से आपको जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिख ली, तो उससे आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इसके रिजल्ट्स लेकर, जो कि एक्चुअल नहीं था। इट्स नॉट अ ट्रू डिपिक्शन। फॉर दैट यू रिक्वायर अप्रॉक्सीमेशंस। तो आपको कुछ एजम्पशंस देनी पड़ती है। तो जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग ऐसे पढ़ा होगा आपने। एक एजम्पशन पढ़ी होगी, द सिस्टम इज अंडर प्योर बेंडिंग। देयर इज नो सिस्टम विच इज अंडर प्योर बेंडिंग, बट यू आर assuming the things because you are trying to make your physical constraints as less complex as they can be। नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बीम है, उसके ऊपर लोड आ रहा है, उसमें शेयर फोर्सेस भी डेवलप हो रहे हैं, उसमें बेंडिंग मूवमेंट्स भी डेवलप हो रही है, उसमें टॉर्शन भी डेवलप हो रहा है। देयर इज नथिंग लाइक प्योर बेंडिंग इन द रियल सिस्टम। तो आप लेकिन कह रहे हो, यू आर एज्यूमिंग प्योर बेंडिंग। अब आपने यही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उठा के इसी पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये तो एक छोटे से क्यूब का बिहेवियर था। यू डू नॉट स्टडी द फुल बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो फिजिक्स में भी यही करता है। एक टेलीस्कोप से देखकर गैलेक्सीज को देख रहे होते हैं, उनके ऑर्बिटल मोशंस देख रहे होते हैं, लेकिन वो तो एक छोटे से सिस्टम को देख रहे हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ सिस्टम्स स्टिल मूविंग अराउंड, जिसको हम, और जो कि अभी भी टेलीस्कोपिक विजन से दूर है, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनके पीछे क्या है। देयर मस्ट बी सम अदर सिस्टम विच इज इवन बिहाइंड दैट सिस्टम, which we are not able to comprehend। तो हम सिविल इंजीनियरिंग में we are also a part of this system। ये पूरे कायनात का एक सिस्टम है, जो एक फिलॉसफी है, एक सोच है। तो उस सोच में हम रेस्ट्रिक्टेड है इस छोटे से स्पेसिमेन पे, और यहाँ से हम एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं बेस्ड ऑन एजम्पशंस। तो एक फिलॉसफी जनरेट हमें करनी है, एक सोच जनरेट करनी है, जिससे हम वो डिज़ाइन करें। तो इट विल बी बेस्ड ऑन मेनी एजम्पशंस, नॉट वन एजम्पशन, इट विल बी बेस्ड ऑन मेनी एजम्पशंस। तो क्योंकि हमें कुछ तो बनाना है, कुछ तो खड़ा करना है, हम कुछ बेसिक सिंपल चीज़ें ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने कहा कि फर्स्ट लॉ है, सेब गिर रहा है तो गिर रहा है, इट्स ग्रेविटी। सेब वापस भी ऊपर जा सकता है। तो ही डिड नॉट, उसने देखा कि ग्रेविटी है, नीचे ही जा रहा है, लेकिन अगर बहुत तेज हवा चली और पानी भी बहा, सेब ऊपर पानी के रह जाएगा, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। और तेज हवा चलेगी तो वो सेब ऊपर भी उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी हैव नॉट रीच टू दैट लेवल। लेकिन इसीलिए हम जब सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनाते हैं, वी टेक सिंपल बेसिक लॉज। ये ग्रेविटी पुल है नीचे की तरफ, हवा चलेगी तो एक धक्का ऐसे आएगा, एक धक्का बिल्डिंग पे ऐसे आएगा। लेकिन हवा ऐसे कभी नहीं आएगी कि एक धक्का पहले यहाँ से देगी फिर एक धक्का ऐसे देगी। हवा तो ऐसे भी घूम सकती है बिल्डिंग के इर्द गिर्द। हवा, जब टॉर्नेडो हरिकेन्स आते हैं, हवा बिल्डिंग को ऐसे ऊपर उठा देते हैं। देखा है टाइफून्स में, देखा है आपने? तो टाइफून्स में ऐसे बिल्डिंग के ऊपर होती है, हवा में घूम रहे होते हैं बिल्डिंग के पार्ट्स विद इन द टाइफून, जो वो लूप बनता है उसमें। तो उसके लिए आप कैसे डिज़ाइन करोगे? इट्स अ वर्लपूल, ऐसे उठ रहा है। तो वही वर्लपूल आपको पानी में भी दिखेगा। जब आप डैम्स, ब्रिज बना रहे हो, तो कहीं पर वॉटेक्स होता है, द वॉटेक्स मोशन इज हैपनिंग विद इन द वाटर, ऐसे घूम रहा होता है। तो आप उसके लिए भी आपको डिज़ाइन करना है। यू कैन नॉट डिज़ाइन फॉर अ कैटास्ट्रॉफ बिकॉज इट विल इन्वॉल्व
a heavy cost. आपको more and more things to take into account. हरिकेन के लिए डिज़ाइन करूँगा मैं आज. अब मैं 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन करूँगा जो कि बिल्डिंग को ऐसे भी हिला रहा है, ऐसे भी हिला रहा है, ऐसे भी हिला रहा है. वो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आपको एयर ब्लास्ट भी कर सकता है बिल्डिंग को. यू कैन डू एनीथिंग. नीचे से ही ज़मीन फट सकती है. कैन यू डिज़ाइन फॉर दोस थिंग्स? इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू चलेगा. सो यू कैन नॉट डिज़ाइन फॉर डिजास्टर्स. What is a disaster? It's a complex phenomena that is happening. Physically मैं इसको कह सकता हूँ, it's a complex phenomena which is happening. So you can take into account 10 different parameters, but you cannot take into account 100 parameters, 1000 parameters. आप अगर वो डिज़ाइन करने बैठ जाओ, then it will keep on becoming complex and complex. आपके ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उड़ जाएंगे, उसकी रैम भी उड़ जाएगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो. बिकॉज एक प्रॉब्लम है ग्रेविटी, एक दूसरी प्रॉब्लम है अर्थक्वेक, तीसरी अर्थक्वेक में 3 डायमेंशंस में एक्ट करता है एटलीस्ट. फिर अगर आप उसके मूवमेंट्स एंड रोटेशंस भी लो तो और 3 डायमेंशंस में एक्ट करेगा, हो गए 6. फिर आपका विंड है, उसके भी 6. फिर आपका ये हो गया पानी का फ्लो हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो उसके भी अनलिमिटेड ये है. फिर मोशंस है, उसमें वॉटेक्स फॉर्मेशन हो सकती है. फिर मैंने आपको कहा टाइफून अनलिमिटेड पैरामीटर्स है, आप उसमें से 50 ही पैरामीटर निकाल दो तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना मैथमेटिकल, it will have n number of polynomials and you cannot design a structure. The structure is designed based on a mathematical model, simple mathematical model जो आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा था. बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन? जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर. तो आपने स्लोप डिफ्लेक्शन में कहीं पर इक्वेशन फिर देखी बेंडिंग मोमेंट की? EI was it 2 degree? It was a 2 degree equation. So that was for bending moment. But when जब आपने लोड इसमें एज्यूम किया एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, जब आपका लोड अब 100 डायरेक्शंस में चलेगा तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ, तो इसमें 200 करीबन आपके polynomial equation will be of a 200 magnitude. Can you then solve it? It will become more and more complex. आपको 2 डिग्री मैग्नीट्यूड का सॉल्व करने में कितनी परेशानी हुई. So if you take a complex system, you cannot actually solve it. So you have to go for assumptions. So that for that you require design philosophy. So for in the design philosophy, पहली चीज फिर क्या है? Every design is based on assumptions. That's the first thing in the design philosophy of all concrete structures as well as steel structure जो आप बाद में पढ़ोगे. पहली चीज ये है, इट्स बेस्ड ऑन assumptions. Right? What are the assumptions in the design? कंक्रीट की प्रॉपर्टी पहले, कंक्रीट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. या लिख लो हेट्रोजेनस है, लेकिन कहो कि होमोजेनस है. इट्स नेवर होमोजेनस, बट यू कैन से इट्स होमोजेनस. कह दो, मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया इसको. राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग. कंक्रीट इज होमोजेनस. What about steel? What is steel? Again, it is well bonded with concrete. With concrete. Matlab, there is strength compatibility, which I talked about last time. Absolute strength compatibility is there. This is about the materials. Now, how do the materials behave under load? How do the materials behave under load?
एक मटेरियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्रश भी हो सकता है कंक्रीट, वो बकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप इसको भी सिंप्लीफाई करते हो। कॉलम L/12 अगर इसमें है, स्लेंडरनेस रेशियो 12 है, तो उससे नीचे क्रश हो जाएगा, 12 से ऊपर बकल हो जाएगा। बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ये कोई लिमिट नहीं है कि वो ऐसे हो जाएगा, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। बट L/D for column, for example, slenderness ratio for column is less than 12, it will crush. More chances of crushing. Greater than 12, it will buckle. This is one phenomenon under load. फिर लोड से क्या होता है? लोड से structure, there is a bearing of the structure happening. There are three phenomena happening at the same time. एक क्रश हो सकता है due to failure, buckle हो सकता है. Third is it can bear. What is bear? It does not take any loads at the point of impact itself. Bearing does not take loads at point of impact. ये bearing की definition है. Now tell me, मैंने इस पे अचानक से यहाँ पर लोड दिया एट दिस पॉइंट ऐसे, तो ये लेयर ही उसकी उड़ गई, इसने लोड ही नीचे ट्रांसमिट ही नहीं किया, तो दैट्स बेयरिंग. लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं इट देयर इज अ सेट बेयरिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद ये लोड सारा ट्रांसफर कर लेगा. लेकिन अगर ऊपर की ही लेयर थोड़ी सी खराब रहेगी, इट मे नॉट, बट वी आर एज्यूमिंग कि ऊपर वाली लेयर खराब नहीं है. देयर इज अ प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरफेस एंड द इम्पैक्ट बिटवीन द टू लेयर्स, जहां से लोड ट्रांसमिट हो रहा है और जिस पे लोड ट्रांसमिट हो रहा है. ऊपर बीम है, नीचे कॉलम है, बीम से लोड जा रहा है कॉलम पे. इट्स एक्चुअली बेयरिंग ऑन द बीम, इज एक्चुअली बेयरिंग ऑन द कॉलम. वी कॉल इट्स बेयरिंग ऑन द कॉलम. मीन्स यहाँ से लोड जा रहा है और पूरा लोड यहाँ ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर ही ये इंटरफेस पे बिटवीन द टू वेयर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बीम एंड कॉलम, वहीं पर ये फेल हो जाए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोड है, सारा लोड वहीं पर पहुँच रहा है, बीम से कॉलम के इंटरसेक्शन पे सारा लोड तो वहीं से जाएगा. तो अचानक से वहीं पर ये फेल हो गया. इट्स नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसमिटिंग द लोड, but we are assuming that we have achieved the bearing strength. So this is load transmission. Then there were two things, material में हम assume कर रहे हैं, फिर load transmission में assume कर रहे हैं. फिर तीसरी चीज़ है डिज़ाइन में हम इसके अलावा क्या assume कर रहे हैं. हम दो चीज़ें assume कर रहे हैं, या तो ये कोलैप्स पहले हो रहा है, या तो दो चीज़ें, या तो ये कोलैप्स पहले हो रहा है, डिजाइन में assumption दी कोलैप्स पहले होगा, या इसकी सर्विसिबिलिटी खत्म हो जाए हो रही है. मीन्स आपने आज मकान बनाया, तो आप कह रहे हो कि मैं इस पे एक और 10 साल के बाद एक और स्टोरी चढ़ा रहा हूँ, या इसका मैं पर्पस ही चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहा हूँ. तो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, आपने कुछ चेंज नहीं की, ड्यू टू एजिंग व्हाट विल मे हैपन, इट मे स्टिल गो फॉर अनसर्विसेबल, इट मे बिकम अनसर्विसेबल. नाउ देयर आर टू मैकेनिज्म्स हैपनिंग, या तो ये बिल्डिंग फेल होगी, या तो ये अनसर्विसेबल बन जाएगी. फेलियर मीन्स या तो उसमें कोलैप्स हो जाएगा, फेलियर मीन्स कोलैप्स, दिस इज फेलियर, इट इज एक्चुअली कोलैप्स. कोलैप्स मीन्स, कोलैप्स किसे कहेंगे? गिरने को. द बिल्डिंग इज एक्चुअली कोलैप्स, दैट्स वन फेलियर, जब ये कोलैप्स हो रही है बिल्डिंग. दूसरा फेलियर
ये फेलियर नहीं है, दिस इज अनसर्विसबिलिटी, दिस इज बिकमिंग अनसर्विसबल, द सर्विसबिलिटी इशू मीन्स जो मैंने आपको कहा इसमें बहुत मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन आर एक्सीडिंग जो आपने एक लिमिट सेट की है उससे एक्सीड हो रही है, या तो इसमें इतने ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं कि people are afraid of going inside the building, there are excessive cracks in the building, it has not failed, it is unserviceable. So both you have to take into account in design. So there are two limit states. From this comes limit states. Limit states. Limit किसे कहते हैं? What do you call limit? Maximum. Limit होते हैं maximum. जिसके आगे आप नहीं जाना चाहते, तो आप डिज़ाइन जब करते हो क्या आप ऐसे सोच के चलोगे एज अ डिज़ाइनर? नाउ फर्स्ट थिंग, जब आपको डिज़ाइन करना होगा तो आप क्या सोच के चलोगे? क्या कल को ये स्ट्रक्चर फेल होना चाहिए? ऐसे सोच के चलोगे? आप ऐसे सोच के चलोगे ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए, तो आपको कहाँ पर एक लिमिट रखनी है? समझ आ रहा है? आप डिज़ाइनर हो, आप ऐसे सोच के नहीं चलोगे ना कि ये कल को फेल होना चाहिए, तो आप उसके लिए डिज़ाइन करोगे। फेल कब होगा? ये फेल ही नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको डिज़ाइन करना है। तो फेल ही नहीं होना वो कब होगा? जब आपका कोलैप्स नहीं होगा स्ट्रक्चर का, व्हेन द स्ट्रक्चर इज नॉट कोलैप्सिंग। तो आपको कोलैप्स से पहले एक लिमिट सेट करनी है। अगर आप उस लिमिट के पार जाओगे, ये ऐसी बात है, आप एक क्लिफ पे खड़े हो गए हो तो कहते हैं ना एक स्टेप और नहीं लेना, शायद इसके बाद गिर सकते हैं। यू आर एट द एंड ऑफ द क्लिफ, उसके बाद आप वी कैन फॉल डाउन। तो आप क्या कहोगे? एक स्टेप और नहीं लेना, 2 स्टेप पीछे ही रहना। तो देयर इज डिज़ाइन में भी ऐसे ही है और कंक्रीट स्ट्रक्चर। आप 2 स्टेप इसको फेलियर से पीछे ही रखो, 5 स्टेप पीछे ही रखो, उसको फेलियर तक जाने मत दो स्ट्रक्चर को। तो डिज़ाइन ऐसे करना है कि वो 5 स्टेप पहले ही रुक जाए। और दूसरी चीज़, ये तो सिर्फ फेलियर हुआ, कोलैप्स। सो देयर इज वन लिमिट स्टेट व्हिच इज मेंट फॉर कोलैप्स, देयर इज अनदर लिमिट स्टेट which is meant for service life. So this is known as limit state of serviceability. So there are 2 limit states. One is limit state of collapse, other is limit state of serviceability. Limit state of serviceability में क्या आ रहा है? वो फेल भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें डिफ्लेक्शंस भी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकती है उससे आप उसको 5 कदम पीछे ही रखो। मैक्सिमम भी डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप कहीं पर लिमिट सेट करोगे फॉर डिफ्लेक्शन। क्रैकिंग हो जाए, थोड़ी सी हो जाए, बहुत एक्सेसिव क्रैकिंग आप अलाउ नहीं करोगे, तो उससे भी मैक्सिमम क्रैकिंग जहाँ पर उसके बाद वो कोलैप्स हो सकता है, तो मैक्सिमम क्रैकिंग से पहले उसको रोक दो। तो क्रैकिंग, मैंने आपको कहा क्रैकिंग हैपन्स, वो क्रैकिंग ऑलवेज हैपन्स बिफोर क्रैकिंग, ये फेलियर बिफोर कोलैप्स। और क्रैकिंग से पहले डिफ्लेक्शंस हो जाती है, बट नॉट इन कंक्रीट, इन स्टील। कंक्रीट में आपको कुछ नहीं दिखता है, एकदम से क्रैकिंग हो जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाती है, फेलियर हो जाता है, बिकॉज कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल। तो तीनों चीज़ें इकट्ठे हो रही है। लेकिन जब आप उसमें स्टील ऐड करते हो कंक्रीट में, तो क्योंकि स्टील की खुद की प्रॉपर्टी क्या है, वो पहले उसमें नेकिंग हो जाती है, यील्डिंग पॉइंट पहुंच जाता है, उसके बाद वो फैल जाता है, इट स्ट्रेचेस,
उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी है स्टील में, उसके बाद वो फेलियर तक पहुंचता है। तो आप पहले तो स्टील जब कंक्रीट के अंदर है वो उसको वही प्रॉपर्टी पे ले जाता है। पहले उसमें डिफ्लेक्शंस थोड़ी सी होती, उसके बाद कहीं पर आपको क्रैक कंक्रीट में नीचे दिखेगा, उसके बाद और डिफ्लेक्शंस होगी, उसके बाद फेलियर हो जाएगा। बट यू डोंट हैव टू अलाउ एनी वन ऑफ दीज टू स्टेज टू बी रीच्ड। तो दोनों लिमिट्स आपको तय करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी। बट दिस लिमिट स्टेट इज बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट फिलॉसफी। इसे हम कहते हैं लिमिट स्टेट फिलॉसफी ऑफ डिजाइन। आप लिखो इसको, लिमिट स्टेट फिलॉसफी ऑफ डिजाइन।